In the previous class, we are discussing about the construction, working, advantage and disadvantage of Ruby laser. And in previous lecture, I discussed the construction of Ruby laser. I discussed the construction of Ruby laser. So can anybody tell me what were the construction steps of the Ruby laser which I discussed in the previous lecture? बता सकते रूबी लेजर की कंस्ट्रक्शन में मैंने कौन कौन से स्टेप्स बताए थे कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ रूबी लेजर? बताइए मैम। एक्टिव मीडियम। यस, वेरी गुड। एक्टिव मीडियम के बारे में मैंने बात की थी और एक्टिव मीडियम हमने क्या लिया था? दैट वाज द रूबी रोड। रूबी रोड हमने एक एक्टिव मीडियम लिया था। व्हाट वाज द सेकंड कंपोनेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेजर? सेकेंड कंपोनेंट हमने क्या लिया था? पावर सप्लाई, दैट इज पंपिंग सोर्स। कि हम पावर सप्लाई कैसे देंगे कि हम अपने जो एटम्स हैं, जो आयंस प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में, उनको एक्साइट कैसे करेंगे, विथ विच काइंड ऑफ एनर्जी वी विल प्रोवाइड। तो वो हमने बोला था कि पंपिंग सोर्स। और पंपिंग सोर्स हमने यूज किया था, दैट वाज द जिनोन फ्लैश लैम्प वाज यूज्ड एज अ पंपिंग सोर्स इन रूबी लेजर, राइट। ये सेकेंड कंपोनेंट की हमने बात की थी। और थर्ड कंपोनेंट हमने बोला था दैट इज अ रेजोनेटर कैविटी। और रेजोनेटर कैविटी के अंदर हमने बात की थी कि वी हैव टू मिरर, मिरर M1 एंड मिरर M2। दीज टू मिरर form a resonator cavity. So these were the three essential components which are required for the construction of Ruby laser. वो हमने डिस्कस कर लिया था, that is Ruby rod plus xenon flash lamp plus cavity. These are the three components which we discussed in detail in the previous lecture, right? उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे वर्किंग कि हाउ लेजर विल एमिट इन रूबी लेजर, कि हाउ वी विल ऑब्टेन द एमिशन ऑफ लाइट। तो फॉर डिस्कसिंग द वर्किंग ऑफ रूबी लेजर, आई डिड ड्रॉ अ एनर्जी लेवल डायग्राम. We have to draw a energy level diagram which I discussed in the previous lecture also. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि this is the ground state of chromium atom. Ground state. ओके, बताइए कि रूबी लेजर के अंदर हाउ मेनी लेवल्स विल बी प्रेजेंट इन द रूबी लेजर? वो मैं 2 और 3 टाइम्स आपको बता चुकी हूँ। 3 मैम। 3 लेवल्स की फर्स्ट इज द ग्राउंड स्टेट, सेकंड इज द excited state and third is a metastable state. So this is the ground state of the chromium ions, right? And we have two bands that will be present. We have two bands that will be present in the excited state. This is the excited state and this is the ground state. These two level corresponds to the excited state. And in between excited state and ground state, we will have a metastable state, and this metastable state is a doublet, means it will have two energy level. Doublet means कि there will be two energy level. If I talk for triplet, triplet के अंदर हमारे पास क्या होगा? 3 energy levels होंगे, but they are closely spaced, कि उनके बीच का जो separation होगा वो बहुत कम होगा, and in this
metastable state, these two energy levels are separated with a distance of 29 centimeter inverse. So this is a metastable state. ये हम क्या बोल रहे हैं? This is metastable state. So we have three states. This is a blue band and this is green band. I told you that for the process of laser, we have to know about three interaction processes. First was the stimulated absorption, second was the spontaneous emission, and third was the stimulated emission, right? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि एटम्स आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट के अंदर आपके पास एटम प्रेजेंट है. तो सपोज दिस इज योर ग्राउंड स्टेट. तो आई विल सप्लाई सम एनर्जी. मैंने जैसे जिनोम फ्लैश लैम्प को ऑन किया तो यहाँ पे इनको क्या मिली? एनर्जी मिली. इन एटम्स को क्या मिली? एनर्जी मिली. एंड दे स्टार्ट टू जंप. They will jump to the excited state and this process is called stimulated absorption. कि उन्होंने इस एनर्जी को absorb किया and they jump to the higher energy state with the process of stimulated absorption. With the process of stimulated absorption, right? But what will happen in this state? जो आपकी excited state है, it has very small lifetime. इसके अंदर atom cannot stay for a long time because इसका जो lifetime होता है वो बहुत कम होता है and that is a order of 10 raised to power minus के 8 सेकेंड. कि आपके जो एटम है वो ग्राउंड स्टेट से तो कहाँ चले गए? एक्साइटेड स्टेट में चले गए. बट एक्साइटेड स्टेट में दे कैन नॉट स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज इसकी डिसएडवांटेज है कि इसका जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत कम होता है. तो आफ्टर 10 raised to power minus 8 सेकेंड these chromium ions start to reach here. वो यहाँ आना स्टार्ट हो जाएंगे without any external energy. Means they will come back from higher excited state to the metastable state without any external energy. तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी? Automatically हो रहा है means that Spontaneous emission. Spontaneously. So this process will be spontaneous and that is an emission. With the process of spontaneous emission, they will reach to the metastable state, right? उसके बाद जो आपका metastable state है, it has a lifetime of 10 raised to power minus के 3 second. It has a little bit large lifetime as compared to this excited state. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि metastable state के अंदर अब क्या हो रहा है कि population start to increase. कि जो क्रोमियम आयंस का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो ग्राउंड स्टेट थी उसके अंदर पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज यहाँ से तो एटम यहाँ जा रहे हैं और यहाँ से आपके एटम्स कहाँ आ रहे हैं? यहाँ आ रहे हैं. तो व्हाट विल हैपन कि पॉपुलेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट will be smaller than the population of metastable state. Metastable state. इनिशियली क्या था? जब हम इनिशियली कुछ एक्शन नहीं था तो सबसे ज्यादा एटम्स या आयंस कहाँ प्रेजेंट थे? ग्राउंड स्टेट में बिकॉज इट इज अ स्टेबल स्टेट, लो एनर्जी स्टेट है और हर कोई अपनी स्टेबिलिटी के लिए लो एनर्जी स्टेट में स्टे करना चाहता है. तो जब हमने कोई एनर्जी नहीं दी थी तो सपोज यहाँ पे हमारे पास 50 एटम्स थे या 50 आयंस थे और जैसे ही हमने एनर्जी दी तो एटम्स आयंस यहाँ से जंप करके यहाँ आए. तो यहाँ पे अब आपके 20 आयंस बच गए और 30 आयंस कहाँ पहुंच गए? मेटास्टेबल स्टेट में. क्योंकि आपका जो एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट का तो लाइफ टाइम बहुत कम है. तो आपके जो 30 एटम्स हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं और यहाँ पे आपके कितने एटम्स रह गए? 20 रह गए हैं. इनिशियली यहाँ पे 50 थे और यहाँ पे 0 था. इनिशियली कंडीशन की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में यू हैव 50 और आपका मेटास्टेबल स्टेट के अंदर 0.
बट आफ्टर सप्लाइंग एनर्जी यहाँ पे आपके पास 20 रह गए हैं और यहाँ पे आपके पास क्या रह गए हैं, यहाँ पे कितने आ गए हैं 30। मीन्स दिस लेवल स्टार्ट टू पॉपुलेट, कि इसके अंदर उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई है। यस, डू यू हैव एनी डाउट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया है और पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अ मैंडेटरी कंडीशन फॉर द लेजर एक्शन। जो मैंने इसके बेसिक में भी बताया था कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन बहुत नेसेसरी कंडीशन है, विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन वी आर नॉट एबल टू अचीव द लेजर एक्शन। तो यहाँ पे आपके पास पॉपुलेशन इन्वर्जन कौन से दो लेवल्स के बीच में हुआ, मेटास्टेबल लेवल, मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट, इन दोनों स्टेट्स के बीच में क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन मेंटेन हुआ है। तो यू कैन से कि वी हैव टू लेवल्स, वी हैव टू लेवल्स, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, वी हैव टू लेवल्स। मैम फर्स्ट इज द मेटास्टेबल लेवल and second is the ground state. तो this is upper lasing level, कि जहां पे लेजर एक्शन होगा, this is the lower lasing। तो इन दोनों लेवल्स के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन मेंटेन हुआ है, तो लेजर एक्शन भी कौन से दो लेवल्स के बीच में होगा, इन बिटवीन दीज टू लेवल्स। अगर आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में अचीव होता, तो जो आपका लेजर एक्शन कौन से दो लेवल्स के बीच में होता, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में होता। तो व्हाट आई वांट टू से हियर, यस बताइए। हेलो हेलो, यस मैम, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम। हाँ हाँ पूछिए कुछ क्वेश्चन। मैम मेरे पास नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आप जो पढ़ा रही हो ग्रुप में डाल देना वीडियो। अच्छा, नेटवर्क इशू है, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपके पास? नहीं मैम, आवाज नहीं आ रही मैम, दिखाई भी नहीं दे रहा। मेरे पास दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दे रहा। नो मैम, दिखाई भी नहीं दे रहा है? नहीं मैम। नो मैम, किसी को भी दिखाई दे रहा है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। वो थोड़ा टू लेवल दिखाई दे रहा है मैम, बस टू लेवल। तो क्या सभी स्टूडेंट्स को, किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा है? कुछ एक दो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम लग रही है। दिख रहा है हमें तो। दिख रहा है ये जो मैम, ये धुंधला हो जाता है मैम। अच्छा, दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, क्लियर विजिबल नहीं हो पा रहा है। मैम आप जो बता रही हो ग्रुप में डाल दो। वॉइस भी आपकी कट रही है मैम। वॉइस भी कट रही है? यस मैम। तो आप Yes, क्या अभी क्लास से एग्जिट हो रहे हो? यू आर सेइंग कि मैं ग्रुप में अपना वीडियो शेयर कर दूं? हाँ मैम। यस मैम। ओके ठीक है, ग्रुप में तो हम डेली आपका हमारा वीडियो शेयर ही करते हैं, बट बेटर रहेगा कि अगर आप क्लास में बने रहें तो कोई भी आपको क्यूरी होगी तो यू कैन टॉक टू मी। मैम ठीक है मैम। अभी देख लीजिए मैम पिछले वाला, मैम यस, जो पिछली क्लास हुई थी वो वाला वीडियो भी डालना। वो अभी शेयर नहीं हुआ ग्रुप में? नहीं आया मैम। नहीं मैम। ठीक है, मैं उसको आज या कल में अभी शाम तक आपके ग्रुप में आ जाएगा। जो लेजर के जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, तो वो आपके ग्रुप में वी विल शेयर। ठीक है, तो आप एक बार फ्री टाइम में और लेक्चर्स देख लेना, और अभी वेट करिए 5 और 10 मिनट्स की, मे बी आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अदरवाइज यू कैन क्विट। ठीक है, ये भी आपका जो आज का लेक्चर है वो भी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे टुडे इवनिंग तक। ठीक है, ओके मैम। ओके। तो यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग कि पॉपुलेशन इन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन दो लेवल्स के बीच में आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, उन्हीं दो लेवल्स के बीच में आपका लेजर एक्शन होगा। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन आपका ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट के बीच में भी हो सकता है, ग्राउंड स्टेट मेटास्टेबल स्टेट के बीच में भी हो सकता है, या फिर कोई भी अदर टू स्टेट्स के बीच में हो सकता है।
तो आपका जो लेजर एक्शन है वो भी फिर उन्हीं दो लेवल्स के बीच में होगा। तो इन द केस ऑफ रूबी लेजर आपका जो लेजर एक्शन होगा वो कौन से दो लेवल्स के बीच में होगा? दैट विल बी मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट, बिकॉज यहाँ पे आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग कि आपका ये जो मेटास्टेबल स्टेट है इसके अंदर आपके जो क्रोमियम आयंस है उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई है, और जो आपका ग्राउंड स्टेट है, इन द ग्राउंड स्टेट population of these chromium ions start to decrease, right? So what will happen, these chromium ions will come here कि आपका एक chromium ion after 10 raised to power minus 3 second 10 raised to power minus 3 second के बाद it will reach to the ground state। तो जैसे ही आपका chromium ions आएगा तो it will emit one photon, ये आपका एक photon emit कर देगा। तो what will happen, this photon, ये जो photon आपका रिलीज हुआ है, emit हुआ है, it will further stimulate other chromium ions। जैसे आपका एक photon emit हुआ तो यहाँ पे तो आपके पास 30 ions हैं, तो ये जो photon क्या करेगा, उन फर्दर जो आपके आयंस है जिनका टाइम 10⁻³ सेकेंड कंप्लीट नहीं हुआ है उनको ऊपर जाके एनर्जी देगा, और एनर्जी देने के बाद उनको नीचे लाएगा। तो फिर यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन, क्योंकि ये जो एक फोटोन रिलीज हुआ है आफ्टर 10⁻³ सेकेंड, it will provide the energy to other ions which are present in the metastable state, जिनका टाइम लाइफ टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, 10⁻³ सेकेंड उनका लाइफ टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, उनको फोर्स करेगा कि वो कहाँ आ जाए, 10⁻³ सेकेंड से पहले क्या हो जाए, ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस हो जाएगा। तो एक फोटोन आपके 2 फोटोन्स को स्टिमुलेट करेगा, फिर 2 फोटोन से आपके पास 4 फोटोन्स आएंगे, देन 8 फोटोन्स आएंगे, 16, 32 मीन्स यू हैव अ नंबर ऑफ फोटोन्स। इनिशियली आपके पास एक फोटोन आया, एक फोटोन ने फर्दर स्टिमुलेट करके 2 फोटोन्स जनरेट किए, फिर 4 फोटोन्स, 8 फोटोन्स, 16 मीन्स एट द एंड यू विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स emitted। और जब बहुत सारे फोटोन्स एमिट होंगे तो यू विल गेट अ वेरी इंटेंस बीम ऑफ लाइट, वेरी इंटेंस बीम ऑफ लाइट, कि यहाँ पे एक नंबर ऑफ फोटोन्स की एक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, तो हमारे पास जो लास्ट में हमें एमिटेड लाइट मिलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी। तो एट द एंड यहाँ पे जो लाइट एमिट होगी दैट विल बी वेरी इंटेंस, और इसका जो कलर होगा दैट विल बी रेड इन कलर, इसका जो कलर होगा दैट विल बी रेड इन कलर। तो यहाँ पे फ्रॉम दिस एनर्जी लेवल डायग्राम यू आर एबल टू अंडरस्टैंड 3 इंटरेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी आपको दिख गया है, स्पॉन्टेनियस एमिशन भी दिख गया और स्टिमुलेटेड एमिशन भी दिख गया है। जो तीनों इंटरेक्शन प्रोसेसेस हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं वो इस एनर्जी लेवल डायग्राम से यू आर एबल टू विजुअलाइज। और सेकंड जो पॉपुलेशन इन्वर्जन की मैं बार बार बात कर रही हूँ कि व्हाट इज अ पॉपुलेशन इन्वर्जन, व्हाट इज अ कंडीशन फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन, दैट थिंग आल्सो यू आर एबल टू विजुअलाइज फ्रॉम दिस एनर्जी लेवल डायग्राम। कि इस एनर्जी लेवल डायग्राम से आपको वो भी विजुअलाइज हो जाएगा कि पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे अचीव हो रहा है, कि पॉपुलेशन यहाँ पे कैसे कम हो रही है और यहाँ पे पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है। तो ये सारे जो बेसिक जो क्राइटेरिया मैंने बताए थे फॉर अ लेजर एक्शन, ऑल दिस क्राइटेरिया आर explained with the help of this energy level diagram, क्योंकि energy without energy level diagram you are not able to understand the working of this ruby laser। तो यहाँ पे सारे के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे क्या हो रहे हैं, ऑब्जर्व हो रहे हैं।
उसके बाद हमने बात की थी दैट वाज द स्पाइकिंग नेचर। Output of Ruby laser. This is a disadvantage of Ruby laser की जो आउटपुट होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, दैट इज नॉट कंटिन्यूस। This is not continuous. It has a spiking behavior. Spiking behavior. अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो it will be like this. This is the output of Ruby laser with time. This is the time and this is laser output. तो what is the origin of this nature कि हमें ऐसा कंटिन्यूस ना मिलके, इस तरह से कंटिन्यूस आउटपुट ना मिलके हमें ऑन ऑफ में एक बार आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, फिर ये जीरो हो जा रही है, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, मीन्स एवरी टाइम ऑन ऑफ। ये आपका लेवल 1 और ये लेवल में आपको क्या कह दूं 0। तो इस तरह से कंटिन्यूस ना मिलके, मीन्स एक लेवल ना मिलके हमें एक बार ऑन हो रहा है, फिर ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, मीन्स नॉट कंटिन्यूस, उसका बिहेवियर कंटिन्यूस ना होके हमें फ्लक्चुएशंस मिल रही है। तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस? तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, जो आपका इसका जो लिमिटेशन है कि इट्स आउटपुट इज नॉट इन कंटिन्यूस मोड। तो दिस इज अ रीजन कि रूबी लेजर इज नॉट यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस, क्योंकि अगर हमें कंटिन्यूस आउटपुट मिलती तो वी कैन यूज दिस रूबी लेजर फॉर कमर्शियल पर्पस, बट ड्यू टू इट्स नॉन कंटिन्यूस बिहेवियर इसकी जो एफिशिएंसी वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। तो लिमिटेशन इसका सेकंड आप कह सकते हैं कि इट हैज लो एफिशिएंसी, क्योंकि ड्यू टू दिस नॉन कंटिन्यूस बिहेवियर इट्स एफिशिएंसी गेट रिड्यूस। तो दैट्स व्हाई रूबी लेजर इज नॉट यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस। तो व्हाट इज द ओरिजिन फॉर दिस बिहेवियर कि ऐसा बिहेवियर हमें क्यों मिल रहा है? So to discuss this behavior, we have to go back about the xenon flash lamp. कि आपका जो रूबी लेजर है, रूबी लेजर के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं? जिनोन फ्लैश लैंप यूज कर रहे हैं। और जो जिनोन फ्लैश लैंप है, जिनोन फ्लैश लैंप की प्रॉपर्टी क्या है कि इट प्रोड्यूस 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी इन फ्यू मिलीसेकंड। कि ये क्या कर रहा है? It produces 1000 joules of energy in few milliseconds. इतने कम टाइम के अंदर, फ्यू मिली सेकेंड के अंदर इसने बहुत सारी एनर्जी को क्या कर दिया, बहुत सारे फोटोन्स को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया है। और जिनोन फ्लैश लैंप ने एनर्जी दी थी, तो मीन्स बहुत इजीली हमने क्या कर लिया है, विद इन अ वेरी स्मॉल टाइम हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर लिया है। और जैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? अपर लेवल पे, इस स्टेट में पहुंच गए हैं, राइट? तो व्हाट इज देयर इज वन फीचर ऑफ दिस जिनोन फ्लैश लैंप की जैसे इसने इतनी एनर्जी प्रोड्यूस की, इट विल स्विच ऑफ फॉर अ फ्यू सेकेंड। कि बहुत स्मॉल टाइम के लिए स्विच ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कि जैसे इसने बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस की तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगा, और पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होने के बाद वी विल रीच एट दिस लेवल। आफ्टर दैट फ्लैश लैंप विल स्विच ऑफ, और स्विच ऑफ के बाद जैसे ये स्विच ऑन होगा, इट नीड सम टाइम, कुछ टाइम के बाद वो स्विच ऑन होगा। तो एट दैट टाइम
पॉपुलेशन इन्वर्जन फेल हो जाएगा, क्योंकि लैंप तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे तो आपका लैंप ने एनर्जी प्रोवाइड किया, मैक्सिमम एनर्जी, तो हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया है। और जैसे आपका लैंप स्विच ऑफ होगा तो उसका एनर्जी रिड्यूस हो गया, एनर्जी रिड्यूस हो गया तो मीन्स पॉपुलेशन इन्वर्जन फेल हो गया। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे, इस लेवल पे, लोअर लेवल पे। फिर जैसे उसके बाद फिर से लैंप ऑन होगा, तो लैंप ऑन होते ही फिर से हम कहाँ आ जाएंगे, अपर लेवल पे, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया। तो एवरी टाइम आपका जो लैंप है वो ऑन ऑफ हो रहा है, और लैंप ऑन ऑफ की वजह से आपका एक बार पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो रहा है और एक बार आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस ऑन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे हमें एक बार ऑन स्टेट मिल रही है और एक बार हमें ऑफ स्टेट मिल रही है। तो दिस इज अ रीजन कि यहाँ पे हमें किस तरह का आउटपुट मिल गया, पल्स टाइप का, पल्स मोड। इनको हम पल्सेस भी बोल सकते हैं कि एक बार हमें लेवल 1 मिल रहा है और दूसरी बार हमें लेवल 0 मिल रहा है, मींस इट हैज पल्स टाइप आउटपुट। तो इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ पंपिंग सोर्स, की जो हम पंपिंग सोर्स यहाँ पे यूज करें, दैट इज ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग का सोर्स हम यहाँ क्या यूज करें, जिनोन फ्लैश लैंप। तो जिनोन फ्लैश लैंप एक बार ऑन हो रहा है, फिर कुछ टाइम के लिए ऑफ हो रहा है। तो जैसे ही ऑफ से वो ऑन स्टेट में जाएगा तो पॉपुलेशन इन्वर्जन फेल हो जाएगा, तो वी रीच इन दिस ऑफ स्टेट, अगेन वी विल रीच इन ऑन स्टेट। तो दिस प्रोसेस विल कैरी ऑन। तो इस वजह से हमें इस तरह का आउटपुट मिलता है, स्पाइकिंग बिहेवियर, राइट। तो ये जो इसका स्पाइकिंग बिहेवियर है, दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस रूबी लेजर विच आई मेंशन्ड हियर, कि ये इसका इटसेल्फ ड्रॉबैक भी है, और ड्रॉबैक की वजह से रूबी लेजर को हम कमर्शियली यूज नहीं कर सकते हैं। देयर इज वन मोर ड्रॉबैक ऑफ दिस रूबी लेजर। सेकेंड ड्रॉबैक इसका है कि आपका जो रूबी लेजर है, इट इज अ सॉलिड स्टेट लेजर। Ruby laser is a solid state laser, and in your 12th class you studied that कि आपका जो solid होता है, solid के अंदर there are lot of defects, कि इसके अंदर solids के अंदर defects भी होते हैं और imperfections भी होती हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स, शॉर्ट की डिफेक्ट्स, ये आपने पढ़े होंगे, बहुत स्मॉल ब्रीफ में आपने पढ़े होंगे कि टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन द सॉलिड। तो इन डिफेक्ट्स की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये आपका एक सॉलिड स्टेट लेजर है, और सॉलिड स्टेट लेजर है तो सॉलिड के अंदर क्या है, डिफेक्ट्स प्रेजेंट है। तो ड्यू टू दीज डिफेक्ट्स इट्स एफिशिएंसी बिकम रिड्यूस। reduce efficiency. So this is the another drawback of this Ruby laser. पहला drawback तो क्या है कि due to pulse mode output it cannot be used as a commercial purpose, और second due to the presence of these defects or imperfection in the crystal lattice its efficiency become reduced. तो ये इसका क्या हो जाएगा, second drawback हो जाएगा। तो what we can say कि आपका जो Ruby laser no doubt it was the first solid state laser which was invented first time, but इसको हम बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर पाए because of these drawbacks. तो इन drawbacks की वजह से साइंटिस्ट ने एक अनदर लेजर निकाला and that was the helium neon laser. सबसे पहले मार्केट में रूबी लेजर आया, but because of these drawbacks we cannot use it for commercial purposes. तो इन drawbacks को रिमूव करने के लिए जो सेकेंड जो लेजर इन्वेंट हुआ, that was the helium neon laser. That was the helium neon laser. That was also invented in 1961. में तो आपका रूबी लेजर आया, दैट वाज द फर्स्ट इन्वेंटेड लेजर, बट उनकी ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए साइंटिस्टों ने फर्दर इसको और भी
और भी उसको क्लियर किया और भी इन्वेंशन की। एंड इन द आफ्टर 1 ईयर उन्होंने नेक्स्ट एक लेजर निकाला इन 1961 एंड दैट वाज हीलियम नियॉन लेजर एंड दिस हीलियम नियॉन लेजर वाज द फर्स्ट गैस लेजर। This was the first gas laser. तो ये आपका क्या था, फर्स्ट गैस लेजर था। और जो रूबी लेजर था वो क्या था, फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेजर था। तो इट वाज इन्वेंटेड बाय अली जावन। अली जावन साइंटिस्ट ने who invented this first gas laser, that was the helium neon laser. So what are the characteristics of this helium neon laser? तो पहला क्या है प्रॉपर्टी की, इट इज अ गैस लेजर। ये आपका एक गैस लेजर है और इसके अंदर कौन कौन सी गैस होगी, इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है, हीलियम एंड नियोन। दैट इज अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियोन गैस। तो यहाँ पे जो आपका एक्टिव मीडियम होगा दैट विल बी इन द गैसियस फॉर्म और उसके अंदर गैस कौन सी होगी, हीलियम गैस एंड नियोन गैस। आपका जो सॉलिड स्टेट लेजर था उसके अंदर आपका जो एक्टिव मीडियम था वो कैसा था, सॉलिड की फॉर्म में था और वो हमने रूबी क्रिस्टल लिया था। यहाँ पे आपका जो एक्टिव मीडियम होगा दैट विल बी गैसियस फॉर्म एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियोन गैस। This is the active medium, right? Second है, what about the pumping? ये आपका अगर गैसियस मीडियम है, गैसियस एक्टिव मीडियम है, तो यहाँ पे हम पंपिंग एनर्जी कैसे देंगे, तो यहाँ पे वी विल यूज अ इलेक्ट्रिकल पंपिंग। Electric pumping will be used to achieve population inversion. क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज करेंगे। तीसरा यहाँ पे अगेन वी विल हैव अ रेजोनेटर कैविटी। कैविटी विल कंसिस्ट ऑफ मिरर M1 है मिरर M2। तो इसके जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, तीनों कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस है, रूबी लेजर के अंदर तो हमने क्या यूज किया था, एक्टिव मीडियम दैट वाज इन द सॉलिड फॉर्म और वो हमें रूबी रोड यूज किया था। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एक्टिव मीडियम मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियोन गैस। सेकेंड पंपिंग हमने वहां पे कौन सी पंपिंग यूज की थी, ऑप्टिकल पंपिंग टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन, बट हियर वी विल यूज अ इलेक्ट्रिकल पंपिंग टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन। थर्ड आपका कैविटी, तो कैविटी में हम क्या यूज करेंगे, मिरर M1 और मिरर M2 वो दोनों क्या बना देंगे, एक कैविटी बना देंगे एंड दैट इज कॉल्ड रेजोनेटर कैविटी। तो ये तीन, these are the three construction steps for the helium neon laser. उसके बाद there are few more properties. फोर्थ वन है कि यहाँ पे it is a 4 level laser. It is a 4 level laser. जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो हीलियम जो रूबी लेजर है उसके अंदर कितने लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कितने लेवल्स होंगे, 4 लेवल्स होंगे। ये कई बार इंटरव्यू में या फिर कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कि समटाइम्स तो रूबी लेजर के बारे में आता है कि कितने लेवल्स होते हैं और कई बार आपसे हीलियम नियॉन लेजर के बारे में पूछा था कि आपके पास जो हीलियम नियॉन लेजर है उसमें कितने लेवल्स होते हैं। तो ऑप्शन में रहेगा 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल और 5 लेवल।
तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि इसके अंदर कितने लेवल्स रहते हैं? 4 लेवल्स रहते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसके अंदर हम जो आउटपुट होगी वो कंटिन्यूअस रहेगी। जो आपकी ड्रॉबैक थी रूबी लेजर की, वो इसकी क्या बन जाएगी? प्रॉपर्टी बन जाएगी कि वहां पे तो कंटिन्यूअस नहीं थी, तो उस ड्रॉबैक को हमने रिजोल्व किया। रिजोल्व करने के बाद वी फाउंड कि आपकी जो नेक्स्ट जो लेजर इन्वेंट हुआ उसके अंदर हमारी जो आउटपुट मिली वो कैसी मिली? कंटिन्यूअस मिली। तो इसके अंदर अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो आपकी आउटपुट कैसी मिलेगी? इस तरह की आउटपुट मिलेगी। जो हमें रूबी लेजर में इस तरह की दिख रही थी वो अब इस तरह की ना मिलके हमें कैसी मिलेगी? कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर मिलेगी। तो हीलियम नियॉन लेजर provide a continuous output. So because of this continuous nature, it is used in a commercial purposes. क्योंकि आपका जो रूबी लेजर है वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज नहीं हो पाया था, तो दैट्स वाई 1961 में नया नेक्स्ट लेजर आया, दैट वाज हीलियम नियॉन लेजर। और उसमें क्या रिजोल्व हुआ, क्या प्रॉब्लम, जो रूबी लेजर का जो प्रॉब्लम था उसको रिजोल्व किया गया एंड it provides a continuous output and that's why it used for a commercial purposes. It used for the commercial purposes. तो ये इसकी क्या बन जाएगी? एडवांटेज। जो उधर उसका रूबी लेजर का डिसएडवांटेज था वो इसका क्या बन गया? एडवांटेज बन गया। नेक्स्ट रूबी लेजर का और डिसएडवांटेज क्या था कि उसके अंदर आपका जो सिस्टम वो हीट अप हो जा रहा था। कि मैंने जब कंस्ट्रक्शन डिस्कस किया था तो आई ड्रॉ कूलिंग अरेंजमेंट, कि हमने उस सेटअप को पूरे को कूलिंग अरेंजमेंट दिया था। बट इन द केस ऑफ हीलियम नियॉन लेजर वी डोंट रिक्वायर एनी कूलिंग अरेंजमेंट। सिक्स्थ है कि नो कूलिंग अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। कि इसके अंदर हमें किसी भी प्रकार की कूलिंग अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिकॉज इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट नहीं आता है। रूबी लेजर के अंदर तो जिनोन फ्लैश लैम्प की वजह से हमारा जो सिस्टम है रूबी रोड वो हीटअप हो जा रही थी, बट यहाँ पे इस तरह का कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। तो इन दिस केस वी डोंट रिक्वायर एनी कूलिंग अरेंजमेंट। तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इट हैज लो कॉस्ट और यू कैन से कॉस्ट इफेक्टिव। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि वहां पे हमें एक एक्स्ट्रा अरेंजमेंट थी, दैट वाज अ कूलिंग अरेंजमेंट, कि हमें एक चैम्बर लेना था, फिर उसके अंदर इनलेट आउटलेट पाइप्स लगाने थे। तो कहीं ना कहीं रूबी लेजर का क्या हो जा रहा था? कॉस्ट बढ़ जा रहा था। बट इन द केस ऑफ हीलियम नियॉन लेजर इसका जो कॉस्ट है वो इफेक्टिव रहेगा। कॉस्ट इफेक्टिव है बिकॉज वी डोंट रिक्वायर एनी कूलिंग अरेंजमेंट। और सेकेंड इसका एडवांटेज क्या है कि इट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूअस आउटपुट। तो कंटिन्यूअस आउटपुट की वजह से ये कमर्शियली भी यूज हो रहा है और इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है। So that was very good laser as compared to ruby laser. So these are the few characteristics of the helium neon laser, right? तो मैंने अभी बताया कि इसके अंदर हम एक्टिव मीडियम किस तरह का यूज करेंगे. What about that pumping? What about cavity? And what about some other properties of this helium neon laser, right? तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि what will be the construction of ruby laser and how this helium neon laser and how it will work. तो उसके बाद हमें डिस्कस करना है what are the construction of helium neon laser. And next, working of helium neon laser. So that we will discuss, but I think that we will start in the next lecture because we have time of this lecture is over and construction is a little bit lengthy. तो इसको हम कल continue करेंगे. तो in the tomorrow lecture we will discuss about the construction
कि हाउ हीलियम नियॉन लेजर कंस्ट्रक्ट, कि वहाँ पे हम किस तरह का ट्यूब यूज करेंगे, व्हाट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ हीलियम नियॉन, जो हम यहाँ पे हीलियम और नियॉन जो गैसेस लेंगे, व्हाट अबाउट दिस कंपोजिशन, इनका कंपोजिशन कैसे रहेगा, एंड कैविटी अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे। तो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन द कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन के बाद वी विल ड्रॉ अ एनर्जी लेवल डायग्राम, जैसे हमने रूबी लेजर के अंदर एनर्जी लेवल डायग्राम की हेल्प से देखा कि कौन सी प्रोसेस कहाँ पे अकर हो रही है। इन द सिमिलर मैनर वी विल ड्रॉ अ एनर्जी लेवल डायग्राम to discuss the working of helium neon laser. So these two things, these two topics we will discuss in the next lecture, right? So thank you so much for this lecture, and if you have any doubt, so you can ask me. Yes, any doubt for today class? You can also type in the chat box your query. You can type in the chat box. No, ma'am. No doubt in this class? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. आपका जो रिकॉर्डिंग का इशू है दैट विल बी शेयर्ड बाय टुडे इवनिंग, राइट? तो जितने भी आपके लेजर के जो भी लेक्चर्स हुए हैं 3 या 4, तो उसका रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आपको शेयर कर दिया जाएगा। यस, ठीक है मैम। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। ओके।